Hello guys, welcome back to She Code. So in our top 100 code series, our problem 42 is to find the frequency of elements present in an array. For example, if you look at the array present on the screen, we have to check how frequent that element is present in that array. If you take 10 is occurring 4 times. 30, second element 30 is occurring 2 times. That means the frequency of 30 is 2, the frequency of 10 is 4 and the frequency of element 20 is 2. So we have to write a Java program to check or to find the frequency of elements in an array. So without any delay, let's start with the program because this question will be more clear when you are actually solving it. So first we will create a function whose task will be to count the frequency of element. For that, public static void frequency count. Okay, let's keep the name frequency count. Inside this we will be having two parameters. One will be our array and one will be the length of array. So inside this function what we will do is we will, after iterating over every element, we will check if this element was visited or not. If that element is visited, that means it has been counted. Okay, and every time that element is visited, we will increase the count. So let's create the array. The array will be of Boolean data type whose name will be visited equals to new Boolean, and the length of this array will be the length of our previous array of the same length. Now this visited array will keep a track on every element of the array, checking if that element is visited or not, and initially all the values of this visited array will be false. That means we haven't visited any element of the array. Arrays dot fill, this third will fill the array visited with false value. So initially the value of every element in visited array will be false. Here comes our first for loop. Now this for loop will iterate over every element. So I is equal to 0, I should be less than and I plus plus. We will check if visited dot I is equal to true. This means कि क्या हमने उस एलिमेंट को पहले विजिट किया है क्या. इससे क्या होगा, जैसे कि अगर हमने एक बार इस 10 को विजिट कर लिया, ठीक है, अब हम दो आइट्रेशंस के बाद इस 10 पर आए, तो इस 10 के विजिट पे हमने इस 10 को भी काउंट करा. ओके, हमने इस 10 को भी काउंट करा, हमने इस 10 को भी काउंट करा और हमने इस 10 को भी काउंट करा. मतलब जब हम इस 10 पर थे तो हमने इन सारे 10 को काउंट करके 10 की फ्रीक्वेंसी नोट कर ली थी. तो अब जब दो आइट्रेशंस के बाद हमारा पॉइंटर इस 10 पे आएगा तो हमें इस 10 को डबल से काउंट करने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट रिक्वायर टू काउंट इट ट्वाइस. सो in this situation we use this if method. अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे. इस कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से हम आगे नहीं, इस लूप में आगे नहीं जाएंगे, ये लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा. इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे काउंट इज इक्वल टू 1. इनिशियली हर एलिमेंट का काउंट 1 होगा. दैट मीन्स वो एरे में एक टाइम प्रेजेंट है. एक और लूप लेंगे फॉर आई इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1. जे शुड बी लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस. हम क्या करेंगे, जे उस सेकेंड लूप में जब हमारा एलिमेंट एंटर होगा तो हम चेक करेंगे कि क्या जो एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स आई है वो एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स जे के इक्वल है, नहीं है. ठीक है, फिर जे पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अगर नहीं है तो जे पॉइंटर एक वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट हुआ, हम चेक करेंगे कि क्या एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स आई इक्वल है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स जे के. हाँ, बिल्कुल इक्वल है. जब ये दो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हम हमारे काउंट वेरिएबल की वैल्यू +1 कर देंगे. ठीक है, ऐसे करते करते ये जे इंडेक्स यहाँ तक चलेगा. n-1 तक, दैट इज लास्ट एलिमेंट तक, और लास्ट एलिमेंट तक
इस एलिमेंट की, जो एलिमेंट आई इंडेक्स पे प्रेजेंट है, उसको कंपेयर करते करते काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा. थ्रू दिस वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, जब तक जो एलिमेंट यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा, हमें हमारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. और जैसे ही हमें कोई एलिमेंट इक्वल मिलता है तो हम उसे विजिटेड ट्रू कर देंगे. दैट मीन्स हमने उसको विजिट कर लिया है. जैसे कि हमने ये एलिमेंट क्या है, ये और ये एलिमेंट दोनों इक्वल है. दैट इज एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स आई और एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स जे इक्वल है. तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, विजिटेड ट्रू कर देंगे. दैट मीन्स हमने इसको विजिट कर लिया है. तो व्हेन इंडेक्स आई कम टू दिस एलिमेंट, तो वो एलिमेंट ऑलरेडी काउंटेड है, तो वहां पे हम हमारे आइट्रेशंस, कंपैरिजंस नहीं करेंगे. दैट्स इट, हमें यही करना है. ओके, एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स आई इज इक्वल टू एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स जे. तो आप क्या करो, अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है तो हमारे विजिटेड एरे में उस वैल्यू को ट्रू कर दो. ओके, दैट मीन्स हमने ये एलिमेंट इक्वल है, अब दूसरी बार उसको आइट्रेट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काउंटेड है. ठीक है, ये कर लिया. और इसके बाद हम हमारे काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे. यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेंगे. मतलब कि अगर जितनी बार वो एलिमेंट आइट्रेट होगा, हम उसका काउंट यहाँ पे नोट कर लेंगे. अब कुछ नहीं करना है, हमें इस अपने फ्रीक्वेंसी काउंट फंक्शन को हमारे मेन फंक्शन में कॉल करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे हमारा एरे लेंगे, इंट एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज लेनी है अपने एरे की. आप स्कैनर क्लास यूज करके अपना पसंद का एरे बना सकते हैं. एरे है. अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे n, जो हमारे एरे की लेंथ को स्टोर करे. हमारे फ्रीक्वेंसी काउंट फंक्शन को हम कॉल करते हैं. दैट्स इट, एंड वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम. लेट्स रन इट एंड चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट. हियर इज एन आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम. यू कैन सी दैट हमें यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिल गई है. सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम वर्क्स. इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इंटरव्यूज, योर प्लेसमेंट्स. ओके, इट कैन बी आस्क्ड, so you have to prepare this. So do practice this problem, and if you have any doubt, if you have any queries or any suggestions, do comment out. Like the video if this tutorial was helpful to you. Subscribe She Codes if you haven't subscribed. And thank you. Bye bye. Happy coding.